Good morning students, how are you all? I hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class 8, subject maths and week number 6. In previous lecture we have started our unit number 12 and we done our exercise number 12a. In exercise number 12a we have done the multiplication of polynomials, how we multiply the two polynomials or three polynomials. But in today's lecture my topic is division of polynomials, how to divide one polynomial by the other. Exercise number 12b, divide the first expression by the second. But before division we have to see the different some steps how we will divide the first polynomial by the second. On page number 154, here are some steps we have to follow. Step number 1, arrange the divided and the divisor in descending powers of the same variable. For example, if I am going to solve the question number 5 of your exercise 12b, a cube minus b cube divided by a minus b. Here are the two polynomials, a cube minus b cube and a minus b. We have to divide a cube minus b cube by a minus b. First of all, we have to, in first step, arrange the divided and the divisor in descending powers of the same variable. First of all, we have to arrange both the polynomials in descending order of same variable. But here are only two terms, one is a cube and second is b cube. If I take this is the dividend and this is the dividend and this is the divisor. How I will arrange? We need not to arrange these polynomials because here are only two terms and with different variables. Here the variable is a and here is the variable b. And when I take the divisor, here we again need not to arrange the variables because here are two terms and two different variables are used in this expression a minus b. So next step 2, divide the first term of the dividend by the first term of the divisor and write the quotient in the first position scheduled for the quotient. Step number 3, multiply each term of the divisor by the quotient and subtract the product from the dividend. हमने करना क्या है? हमने अपने जो भी आपके पास गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था? अरेंज करना. फर्स्ट स्टेप क्या था? अरेंज करना. बट इस क्वेश्चन में आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है. सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है? डिवाइड करना है. किसको? डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पर. क्या करना है आपने? डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पर आपने डिवाइड करना है. a क्यूब डिवाइडेड बाय a. क्या करना है? a क्यूब को a पर हमने डिवाइड करना है. जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको कहा था कि जब बेसिस सेम हो और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या होती हैं? उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. लेकिन डिवीजन में क्या होता है? अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट. सो जब हम a क्यूब को डिवाइड करेंगे a पर तो ये क्या हमें रिजल्ट देगा? a क्यूब डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपने अरेंज करना है दोनों पॉलिनोमियल्स को. सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है. जो क्वोशिएंट आपके पास आएगा मींस कि आपके पास क्वोशिएंट क्या आया? a स्क्वायर. अब a स्क्वायर को आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. मीन के डिवाइडेड. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूँ, फर्स्ट स्टेप a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले मैंने इसको आम डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, डिवाइडेड बाय a माइनस b. लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में मैंने इसे लिखा है.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अंदर राइट किया मैंने और ए माइनस बी को बाहर मैंने राइट कर दिया। अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया ए स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वोशिएंट आया ए स्क्वायर, इसको हमने डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर की हर एक टर्म मींस कि a माइनस बी को हमने हमारे पास जो क्वोशिएंट आया है ए स्क्वायर, इसकी हर एक टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है, अब हमने इसको करना क्या है, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेड। हमने करना क्या है कि अब जो हमारे पास आया है इसको हमने राइट कैसे करना है, क्या करना है हमने इसको राइट कैसे करना है। अब हमने हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो क्या था ए स्क्वायर को जब आपने a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसको हमने इसके नीचे राइट करने हैं, लेकिन लाइक टर्म्स के नीचे, मींस के ए क्यूब के नीचे आपने ए क्यूब राइट करना है और a माइनस ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट कॉलम में लेके जाएंगे। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया माइनस ए स्क्वायर बी हम यहाँ नेक्स्ट कॉलम में राइट करेंगे। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने करना क्या है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये प्लस की है ये माइनस में चेंज हो जाएगी, जब माइनस की है ये प्लस में चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा कि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो वैल्यूज बची हैं हम उनको नीचे लेके आएंगे, क्वेश्चन को हम नीचे लेके आएंगे। Bring the remaining part of the step number 4. Bring the remaining part of the dividend to the lower level in line with the dividend left from step 1. ठीक है, अब स्टेप 1 में से जो आपके पास बाकी बच गए हैं उनको आपने नीचे लेके आना है। नीचे कैसे लेके आना है, अगर हम a के लिहाज से चल रहे हैं तो a वाली वैल्यूज हमने पहले नीचे लेके आनी है। मैं प्लस ए स्क्वायर बी को नीचे लेके आ रही हूँ माइनस बी क्यूब, ये दो वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइड दिस डिवाइडेंड बाय द डिवाइजर एज कैरिड आउट इन स्टेप 2, कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल नो फर्दर डिवीजन कैन बी कैरिड आउट। अब अगेन हमारे पास वही स्टेप 2 रिपीट होगा, वही स्टेप नंबर कौन सा रिपीट होगा 2, मींस के अब ये हमारे पास डिवाइडेंड है और ये हमारे पास डिवाइजर है। पहले हमारे पास ये डिवाइडेंड था a क्यूब माइनस b क्यूब, अब हमारे पास ये डिवाइडेंड है। अब उसी तरह डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म a स्क्वायर b प्लस, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है a। ठीक है, इसको आप जब a स्क्वायर b को a पर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास डिवाइजर a b बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास डिवाइजर a b। अब वही स्टेप हम रिपीट करेंगे, स्टेप नंबर 2 कि डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को आप डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे। a स्क्वायर b को जब हम डिवाइड करेंगे a पर तो क्या होगा 2, क्योंकि बेसिस सेम है, 2 माइनस 1 हो जाएगा b और क्या बचेगा ab। क्या बचेगा हमारे पास ab। अब उसी तरह थर्ड स्टेप हमने रिपीट करना है। अब हमारे पास क्या यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ab। क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन ab। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उसको हम डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मींस के a b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे a b के साथ। a का स्क्वायर लेंगे a और a मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे a स्क्वायर b माइनस a और a b जब a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा a b स्क्वायर। तो हम क्या राइट करेंगे, इसे हम उसी के नीचे राइट करेंगे a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। ये हम अब कहाँ राइट करेंगे, लेकिन यहाँ b स्क्वायर वाली कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे माइनस a b स्क्वायर। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इनकी अब हम साइन चेंज करेंगे, इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, जिस तरह हम लॉन्ग डिवीजन में करते होते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन जो है वो
अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 टर्म्स हमारे पास बाकी आएंगे। क्योंकि हम a के लिहाज से कर रहे हैं तो हम a वाली वैल्यू पहले लेके आएंगे, ab² माइनस b³। अब हम रिमाइंडर को नीचे लेके आएंगे। अगेन वही हम स्टेप रिपीट करेंगे कि अब हमारे पास ये डिवाइजर है, सॉरी ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। इस डिवाइडेंड को हम डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ab² को हम डिवाइड करेंगे किस पर, a पर। a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बचेगा, b²। क्या बचेगा हमारे पास क्वेश्चन, प्लस b²। अब ये जो क्वेश्चन b² आया है, हमने इसको डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है। a माइनस b डिवाइजर है, इसको हम b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बनेगा, ये ab² माइनस b³। क्या बनेगा हमारे पास, ab। जब a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ab² और b² माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस b³। क्योंकि b² मल्टीप्लाई बाय b बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, b³। तो हम इसको राइट करेंगे, हमारे पास ab² को हम ab² के नीचे राइट करेंगे, माइनस b³ को माइनस b³ के साथ राइट करेंगे। और लॉन्ग डिवीजन का जिस तरह हम लोग करते होते हैं वैसे हम इसको करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन में ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अलजेब्रा में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस ये आपस में कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये आपस में क्या जाएंगे, कैंसिल, और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 0। सो जब हमने a³ माइनस b³ को डिवाइड किया है a मीन माइनस b के साथ, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, a² प्लस ab प्लस b²। अगेन मैं आपको स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ कि जो भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेंज करना है विद इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो डिवाइडेंड है ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास a³ को जो हमने a पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आया, a²। अब इस a² को हमने डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया a³ माइनस a²b। हम a³ के नीचे हमने a³ को राइट किया लेकिन a² वाली वैल्यू नहीं थी इसलिए इसको हमने नेक्स्ट कॉलम में राइट किया तो ये a² होगा। इसी तरह हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इन दोनों के साइन चेंज किए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम नीचे लेके आएंगे, फिर वही हमारा स्टेप रिपीट होगा। अब ये हमारा डिवाइडेड है और ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया ab। ab को इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म के साथ डिवाइजर की तो हमारे पास आया a²b माइनस ab²। a²b को a²b के नीचे राइट करेंगे और ab² के कॉलम नहीं था इसलिए हम इसको नेक्स्ट कॉलम में लेके जाएंगे। प्लस फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने साइन चेंज किए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए और ये माइनस किस में हो गया, प्लस में चेंज हो गया। अब इसको हम लेके आएंगे नीचे ab² माइनस b³ को। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास ये डिवाइडेड है, ये डिवाइजर है। डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया b²। अब b² को हमने अपने डिवाइजर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। जब डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ab² माइनस b³। इसको हमने ab² को ab² के नीचे राइट किया और b³ को b³ के नीचे। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्या होगा, अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस कैंसिल और माइनस प्लस कैंसिल, आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो ये हमारा आंसर है a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाय a माइनस b इज इक्वल टू a² प्लस ab प्लस b²। तो इसी तरीके से आपके जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के इसी मेथड के साथ आपके जो है वो सॉल्व होंगे। अगर आपने इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखेंगे, इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए आप अपने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको हम लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। पहले माइनस 3x माइनस 2 ये हमारा डिवाइडेंड है।
और x प्लस 2 हमारा डिवाइजर है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अगर आप देखें तो ये x के लिहाज से ऑलरेडी अरेंज है, ये पोलिनोमियल x के लिहाज से ऑलरेडी अरेंज है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन बड़े से छोटे की तरफ हमने जाना है, x क्यूब देन x स्क्वायर देन x एंड देन कांस्टेंट। और ये हमारे पास क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हमारे पास है, ये भी अरेंज फॉर्म में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अरेंज करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेड को हमने फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करना है। डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x क्यूब, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x क्यूब को जब हम x पर डिवाइड करेंगे इट विल गिव आंसर x स्क्वायर। क्या आ देगा, ये हमारे पास क्वेश्चन x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया है, x स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई क्वोशंट जो हमारे पास x स्क्वायर आया है थर्ड स्टेप में विद ईच टर्म ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम, x प्लस 2 है, इसको हमारे क्वोशंट है x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब को x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, और 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इन सारी वैल्यूज को हम नीचे लेके आएंगे। अब अगेन हमारा ये डिवाइडेड है और ये हमारा क्या है, डिवाइजर। डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करें, माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म x के साथ, तो ये क्या आंसर देगा आपको, माइनस एक्स। ये आपका क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x प्लस 2 को हमने माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट विल प्रोड्यूस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगेन अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस में, और फिर ये भी माइनस प्लस में, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3x माइनस 2x, इट विल गिव द आंसर माइनस x एंड माइनस 2। अगेन ये आपके पास डिवाइडेड, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइडेड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करें, माइनस एक्स को x के साथ डिवाइड करेंगे, ये आंसर आपको क्या देगा, माइनस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, माइनस 1। अब माइनस 1 को डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये क्या देगा, माइनस x माइनस 2। क्या आंसर देगा हमें, माइनस x माइनस 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज करें, माइनस प्लस कैंसिल एंड माइनस प्लस कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0। सो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो इसी तरीके से ही आपके जो है वो सॉल्व होंगे। अगर आप इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग a प्लस b पर्सन्स, हाउ मच विल ईच पर्सन रिसीव। इसमें भी हमने क्या, उन्होंने क्या कहा है, कुछ अमाउंट आपको दी हुई है और नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए हुए हैं, और ये कहा गया है कि अगर ये अमाउंट इन पर्सन्स में डिवाइड कर दी जाए तो हाउ मच विल ईच पर्सन रिसीव, तो हर एक के हिस्से में कितनी कितनी मनी आएगी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। Question number 17. A school has 3x cube minus 11x square y plus 11xy square minus 2y cube students and x minus 2y buses. If all the children have to be taken on a picnic, how many children should be allocated to each bus? इसमें स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं और नंबर ऑफ बसेस आपको दिए हुए हैं। तो आपने इसमें ये बताना है कि हर एक बस में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच बस। तो आपने भी इसी तरीके से आपने दोनों पॉलिनोमियल्स को जो है वो इसमें डिवाइड करना है।
क्वेश्चन नंबर 18 में भी इसी तरह ही है। Ali buys a box of pencils for rupees 6x square minus 17x plus 12. If a single pencil costs rupees 3x minus 4, how many pencils are there in the box? तो इसमें भी आपने दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड ही करना है और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग। द प्राइस ऑफ अ डॉल इज रुपीज, क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस ऑफ अ डॉल इज रुपीज a plus 5 if Sana has rupees a square plus 11a plus 30, how many dolls can she buy for her friend? तो इसमें भी उन्होंने क्या करना है कि आपने इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में जो है वो डिवाइड करते हुए, इसी मेथड के थ्रू डिवाइड करते हुए आपने इनका जो है वो आंसर निकाल लेना है। 12b कंप्लीट। ये फुल वीक का आपका जो है होमवर्क है, आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।